سلامتی ہو۔ میں آپ سب کو ہمارے ہر روز کی بائبل ریڈنگ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے عزیزوں، کل ہم نے خداوند کے کلام میں سے استثنا کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک خداوند کے کلام کو پڑھا تھا، اور آج ہم اپنی بائبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے خداوند کے کلام میں سے استثنا کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک خداوند کے کلام کو پڑھیں گے۔ اور اس سے پہلے میں خداوند کے کلام کو پڑھنا شروع کروں، آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ جتنے میرے ساتھ آن لائن آ چکے ہیں ضرور اس ویڈیو کو اپنی وال پر اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں تاکہ مزید لوگ ہمیں خداوند کا کلام سننے کے لیے جوائن کر سکیں۔ میرے ساتھ اپنی بائبل مقدس کو ضرور کھولیں اور نکالیں استثنا کی کتاب بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر 7، اس کی 12ویں آیت سے یوں لکھا ہے، اور تمہارے ان حکموں کو سننے اور ماننے اور ان پر عمل کرنے کے سبب سے خداوند تیرا خدا بھی تیرے ساتھ اس عہد اور رحمت کو قائم رکھے گا جن کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی، اور تجھ سے محبت رکھے گا اور تجھ کو برکت دے گا اور بڑھائے گا، اور اس ملک میں جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی، وہ تیری اولاد پر اور تیری زمین کی پیداوار یعنی تیرے غلہ اور میں اور تیل پر اور تیرے گائے بیل کے اور بھیڑ بکریوں کے بچوں پر برکت نازل کرے گا۔ تجھ کو سب قوموں سے زیادہ برکت دی جائے گی، اور تم میں یا تمہارے چوپایوں میں نہ تو کوئی عقیم ہوگا نہ بھانج، اور خداوند ہر قسم کی بیماری تجھ سے دور کرے گا، اور مصر کے ان برے روگوں کو جن سے تو واقف ہے تجھ کو لگنے نہ دے گا، بلکہ ان کو ان پر جو تجھ سے عداوت رکھتے ہیں نازل کرے گا، اور تو ان سب قوموں کو جن کو خداوند تیرا خدا تیرے قابو میں کر دے گا نابود کر ڈالنا، تو ان پر ترس نہ کھانا اور نہ ان کے دیوتاؤں کی عبادت کرنا، اور نہ یہ تیرے لیے ایک جال ہو۔ اور اگر تیرا دل بھی یہ کہے کہ یہ قومیں تو مجھ سے زیادہ ہیں، میں ان کو کیوں کر نکالوں، تو بھی تو ان سے نہ ڈرنا، بلکہ جو کچھ خداوند تیرے خدا نے فرعون اور سارے مصر سے کیا اسے خوب یاد رکھنا، یعنی ان بڑے بڑے تجربوں کو جن کو تیری آنکھوں نے دیکھا، اور ان نشانوں اور معجزوں اور زور آور ہاتھ اور بلند بازو کو جن سے خداوند تیرا خدا تجھ کو نکال لایا، کیونکہ خداوند تیرا خدا ایسا ہی ان سب قوموں سے کرے گا جن سے تو ڈرتا ہے، بلکہ خداوند تیرا خدا ان میں زمبوروں کو بھیج دے گا، یہاں تک کہ جو ان میں سے باقی بچ کر چھپ جائیں گے وہ بھی تیرے آگے سے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ان سے دہشت نہ کھانا، کیونکہ خداوند تیرا خدا تیرے بیچ میں ہے، اور وہ خدائے عظیم اور مہیب ہے، اور خداوند تیرا خدا ان قوموں کو تیرے آگے سے تھوڑا تھوڑا کر کے دفع کرے گا، تو ایک ہی دم ان کو ہلاک نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ جنگلی درندے بڑھ کر تجھ پر حملہ کرنے لگے، بلکہ خداوند تیرا خدا ان کو تیرے حوالہ کرے گا اور ان کو ایسی شکست فاش دے گا کہ وہ نابود ہو جائیں گے، اور وہ ان کے بادشاہوں کو تیرے قابو میں کر دے گا، اور تو ان کا نام صفائے روزگار سے مٹا ڈالے گا، اور کوئی مرد تیرا سامنا نہ کر سکے گا، یہاں تک کہ تو ان کو نابود کر دے گا۔ تم ان کے دیوتاؤں کی تراشی ہوئی مورتوں کو آگ سے جلا دینا، اور جو چاندی یا سونا ان پر ہو اس کا تو لالچ نہ کرنا اور نہ اسے لینا، تا نہ ہو کہ تو اس کے پھندے میں پھنس جائے، کیونکہ ایسی بات خداوند تیرے خدا کے آگے مکروہ ہے۔ تو ایسی مکروہ چیز اپنے گھر میں لا کر اس کی طرح نیست کر دیا جانے کے لائق نہ بن جانا، بلکہ تو اس سے از حد گن کھانا اور اس سے بالکل نفرت رکھنا، کیونکہ وہ ملعون چیز ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو میرے عزیزوں، خداوند کے کلام میں سے استثنا کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 12ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک یعنی کہ 26ویں آیت تک میں نے اور آپ نے ہم سب نے مل کر خداوند کے کلام کو
पढ़ा है। और मेरे अजीजों, मैं और आप हम क्योंकि खुदावंद के कलाम में से अब तक इस्तिस्ना की किताब के पहले 7 बाब जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कि 7 चैप्टर्स हमने इनकी बाइबल रीडिंग को किया है। और हम मुसलसल देखते हैं कि वही बातें जो हमने अहबार में, खरूज में और गिनती की किताब में सीखी थी, उन्हीं बातों को जो है आगे रिपीट किया जा रहा है। खुदा के वही हुक्म जो पहले बनी इसराइल को दिए गए हैं, अब सिर्फ उनको जो है दोहराया जा रहा है, ताकि बनी इसराइली मुल्क कनान में दाखिल होने से पहले उन सारे हुक्मों को फिर से सुन ले और फिर बड़ी एहतियात करके, क्योंकि खुदावंद चाहता था कि सिर्फ इस तरह नहीं, कई बार हमने कोई काम करना होता है, जरा सा जो है हम गौर करते हैं कि इस काम को कैसे करना है और करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब हम किसी काम को करने से पहले बहुत अच्छे से, ध्यान से, केयरफुल होकर सीख लेते हैं, फिर उस काम पर हाथ डालते हैं काम करने के लिए, तो फिर हम कामयाब हो जाते हैं। अदरवाइज कई बार जो है चीजें अधूरी भी रह जाती हैं। तो इसी तरह खुदावंद जो है वो अपने लोगों से यही चाहता है कि पहले मेरे हुक्मों को ठीक से सुने, ठीक से जान लें, इन्हें रिवाइज कर लें, याद कर लें और फिर एहतियात करके जो है इन पर अमल कर सकेंगे। और अगर वो खुदा के हुक्मों पर थोड़ी सी तवज्जो देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे और पलट कर उनको याद भी नहीं करेंगे, तो फिर मुमकिन नहीं कि खुदा के हुक्म जो हैं उनको याद रखा जा सके और फिर तरतीब के साथ, एहतियात के साथ जो है उन पर अमल किया जा सके। सो खुदा, इसराइल का खुदा, गयूर गैरत वाला खुदा जो है अपनी कौम को जो है वो नेकी की बातें सिखाता है, पाकीज़गी की बातें सिखाता है, रास्तबाजी की बातें सिखाता है। खुदा का इंसान को अपने अहकामात देने का मकसद, शरीयत देने का मकसद इंसान को अपना गुलाम बना लेना नहीं था, बल्कि इंसान को जिंदगी की तरफ लाना था। वही जिंदगी जिसके लिए शैतान नहीं चाहता कि इंसान उस जिंदगी को हासिल कर सके, लेकिन खुदा चाहता है कि इंसान उसी जिंदगी को हासिल करे और हमेशा के लिए जो है वो खुदा के साथ जिंदा रह सके, खुदा की इबादत कर सके। सो खुदा इंसान को अपना गुलाम बनाना नहीं चाहता, बल्कि ये खुदा की मोहब्बत है, जिस मोहब्बत में वो इंसान को बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत और बड़ी शफकत के साथ बुलाता है, ताकि जो कोई उसके पास आए वो मर भी जाए तो भी हमेशा जिंदा रह सके। सो बनी इसराइलियों को भी खुदा ने अपने अहकामात जो दिए, शरीयत जो दी, वो अपनी मोहब्बत की वजह से दी थी, उनको गुलाम बनाने के लिए नहीं। अगर खुदा बनी इसराइलियों से मोहब्बत ना करता तो उनको चुनकर दूसरी कौमों में से जो है वो अलग भी ना करता, और अगर खुदा ने उनसे मोहब्बत की, उनको अलग किया और जितने कवानीन खुदा ने दिए वो यकीनन कवानीन जो है ये बनी इसराइलियों को पाक रखने के लिए, रास्तबाज रखने के लिए दिए गए, क्योंकि खुदा के करीब आने के लिए जो है इंसान को अपना आप जो है वो गुनाह से छुड़ाना पड़ता है, और इंसान चाह कर भी कभी अपना आप जो है वो गुनाहों से नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि इंसान कमजोर है और उसकी शिरस्त में गुनाह जो है वो शामिल हो चुका है। बदी जो है इंसान की शिरस्त में शामिल है, इसीलिए इंसान चाह कर भी इन चीजों से नहीं भाग सकता, अनलेस के वो यस्सु के पास आए, यस्सु की सलीब के पास आ जाए, और फिर यस्सु की सलीब उसे माफी देती है, यस्सु का खून उसे माफी देता है, और फिर खुदावंद यस्सु का इनाम रूहुल कुद्स जो उसने हमें इनाम में दिया है, वो हमें मदद करता है हमारी कि हम गुनाह को छोड़कर फिर रास्तबाजी में कायम रह सके, पाकीज़गी में कायम रह सके। वही पाकीज़गी, वही रास्तबाजी जो हमने अपने ओन से हासिल नहीं की, बल्कि खुदावंद यस्सु के कफारा के वजह से मुझे और आपको खुदा ने इनाम में दे दी है। सो बनी इसराइलियों को भी पाक खुदा रखना चाहता था, क्योंकि खुदा पाक है, और खुदा चाहता था कि खुदा की कौम के लोग, खुदा के लोग जो कहलाते हैं वो भी पाक रहे, वैसे ही पाक जैसा खुदावंद पाक है। और इसी पाकीज़गी को कायम रखने के लिए, रास्तबाजी को कायम रखने के लिए खुदा ने अपने लोगों को अपने अहकामात दिए, ताकि खुदा के लोग खुदा के हुक्मों को माने और खुदा की नजर में पाक बन जाएं। जब हम आज की इस 12वीं आयत की तरफ गौर करते हैं तो लिखा है, और तुम्हारे इन हुक्मों को सुनने और मानने और उन पर अमल करने के सबब से खुदावंद तेरा खुदा भी तेरे साथ उस अहद और रहमत को कायम रखेगा। अब खुदा ने अहद जो है वो तो किया है, बाप दादा से किया है, इनसे भी किया है, लेकिन खुदा कहता है मैं उस अहद को कायम रखूंगा जिनकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई है। यानी कि खुदा वादा सिर्फ करता नहीं, खुदा उस वादे को
कायम भी रखता है और बनी इसराइलियों को भी कहता है, खुदा इनकरेज करता है कि उस अहद को कायम रखूंगा। ये बातें जितनी की जा रही हैं, ये खुदा का बंदा मूसा बनी इसराइलियों तक खुदा का कलाम पहुंचा रहा है। ये बातें सारी खुदा की हैं, लेकिन बनी इसराइलियों तक खुदा के बंदा मूसा की मार्फत पहुंचाई जा रही है। लिखा है आगे 13वीं आयत में, और तुझसे मोहब्बत रखेगा। ये खुदा की सबसे बड़ी इंसान के ऊपर बख्शिश है कि खुदा इंसान से मोहब्बत रखेगा। खुदा ने इसी बात का वादा बनी इसराइल से भी किया और लिखा है और तुझको बरकत देगा, यानी कि अगर बनी इसराइल खुदा के हुक्मों को मानेंगे, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो खुदा उनसे मोहब्बत भी रखेगा। दूसरी बात है खुदा बरकत भी देगा और फिर बढ़ाएगा भी। जिसको खुदा की बरकत मिले वो खुदा के नाम से बढ़ जाता है, और जिसको खुदा ना बढ़ाए उसे इंसान कभी नहीं बढ़ा सकता। अगर इंसान अपने पैसे लगाकर, रिश्वतें लगाकर, गलत काम करके वक्ती तौर पर बढ़ा भी ले, तो याद रखे वो बढ़ाना जो है, इंसान का बढ़ाना कभी भी अब्दियत के लिए नहीं होता। लेकिन जब खुदा हमें बढ़ाता है, खुदा हमें बरकत देता है, तो हमारी बरकतें जो है वो खुदा की तरफ से अब्दी बरकतें होती हैं। सो मुबारक है वो जिसे खुदा बढ़ाए, क्योंकि खुदा उसकी बरकतों को कायम रखता है। आगे लिखा है और उस मुल्क में जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई, वो तेरी औलाद पर और तेरी जमीन की पैदावार यानी तेरे गल्ला और मैं और तेल पर और तेरे गाय बैल के और भेड़ बकरियों के बच्चों पर नाजिल करेगा। यहाँ पर खुदा जो है वो खास हुक्म देता है, खास बात कहता है बनी इसराइलियों को इनकरेज करते हुए कि आगे अगर हम मजीद आयतें पढ़े तो खुदा जो है वादे ये करता है कि अगर तो खुदा के लोग खुदा के साथ वफादार रहेंगे तो खुदा हर तरह से उनको बढ़ाएगा। सिर्फ उनको नहीं बल्कि उनके मवेशियों को भी बढ़ाएगा। और फिर मजीद आगे आयत का मुतालिया करें तो हम हर एक आयत को आज जो है वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वही बातें हैं जो हम हर रोज रिपीट करते हैं। सो यहाँ पर खास खुदा बात कहता है कि मिस्र के अंदर जो वबाएं थी, मिस्र के अंदर जो बीमारियां थी, अगर तो बनी इसराइली खुदा के हुक्म को मानेंगे, खुदा के हुक्म की ताबेदारी करेंगे, तो वो वबाएं जो मिस्रियों में नाजिल हुआ करती थी, वो बीमारियां जो उनको सताया करती थी, खुदा बनी इसराइलियों से और उनके मवेशियों से उनको जो है वो दूर रखेगा। अब यहाँ पर सिर्फ वो वबाओं का जिक्र नहीं किया जा रहा जो कि खुदा ने मिस्रियों में से बनी इसराइलियों को आजाद कराने के लिए, छुड़ाने के लिए नाजिल की थी, बल्कि वैसे भी जो बीमारियां वहां पर हुआ करती थी, जैसे हम देखते हैं कि कोई स्पेसिफिक मुल्क है, वहां पर कोई स्पेसिफिक किस्म की बीमारी पाई जाती है, और अगर हमें उस मुल्क में ट्रैवल करना पड़ जाए तो फिर उस मुल्क की रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो है इसका इंजेक्शन लगा कर आए, आप इस खास बीमारी की जो है वो वैक्सीन लेकर आए, अदरवाइज आप हमारे कंट्री में जो है वो इंटर नहीं हो सकते। तो इसी तरह से मिस्र में भी कुछ ऐसी बीमारियां पाई जाती थी खास किस्म की। खुदा बनी इसराइलियों को यहाँ पर याद कराता है कि अगर तो मेरे वफादार रहोगे तो वो सारी बीमारियां जो मिस्र में पाई जाती थी, वो सारी वबाएं भी जो है मैं उनको भी तुम्हारे घरानों से, तुम्हारी नस्लों से, तुम्हारे मवेशियों से जो है वो दूर रखूंगा। लेकिन बात यह है कि अगर बनी इसराइली खुदा के वफादार नहीं रहेंगे, अगर वो खुदा के नाफरमान ही रहेंगे, अगर वो खुदा के हुक्मों की ताबेदारी नहीं करेंगे, तो फिर खुदा कहता है जरूर तुम पर आफतें भी आएंगी, जरूर बीमारियां भी तुमको तंग करेंगी, सताएंगी, और तुम खुश नहीं रह सकोगे। बल्कि खुश रहने के इवज जो है, खुश रहने और बढ़ने के इवज, तरक्की करने के इवज जो है तुम रोगे, परेशानियों में मुब्तला हो जाओगे, और बढ़ने की बजाय जो है वो घटते जाओगे। ये खुदा ने दोनों कंडीशंस जो है वो इंसान के सामने रखी, बनी इसराइल के सामने रखी, और आज मैं और आप जब अपनी बात करते हैं, हमारे सामने भी खुदा ने इन दोनों कंडीशंस को रखा है कि अगर तो हम खुदा के फर्मा बरदार होंगे तो खुदा की बरकतें हमारी हैं, और अगर हम खुदा के नाफरमान हो जाएंगे तो फिर खुदा का गजब हम पर भड़केगा। इससे अगले हिस्सा में चले जाएं तो फिर आज के कलाम में जो हमने खास बात पढ़ी है, जिसके बारे में हमने कल भी बड़ी तफसील से सीखा था, इसीलिए आज हम एक आयत को जो है वो रिपीट नहीं कर रहे, क्योंकि तकरीबन इन 7 चैप्टर में हम इन्हीं बातों को जो है वो पढ़ते आ रहे हैं। तो अगले हिस्से में खुदा बात करता है
कि बनी इसराइलियों को जो है वो गैर कौमें जो कि पहले से मुल्क कनान में रहती हैं उन पर रहम नहीं करना होगा, बल्कि खुदा ने जिनसे नफरत रखी है, खुदा ने जिनसे अदावत रखी है, जरूर है कि बनी इसराइली भी उनसे नफरत ही करें, उनसे अदावत ही करें। और जब खुदा ने कहा कि जिन कौमों को हलाक करना है तो उनको हलाक ही करना होगा। खुदा ने ये नहीं कहा कि आधों पर तो जुल्म करना और आधों पर रहम करना। याद रखें, यहाँ पर अगर हम जुल्म का भी वर्ड यूज करें तो वो जुल्म का वर्ड ठीक नहीं, क्योंकि जब खुदा इंसान को उसके किए गुनाहों की सजा देता है तो खुदा जुल्म नहीं करता, खुदा किसी पर भी जुल्म नहीं करता और ना कभी वो जुल्म करना चाहता है। ये बात नॉर्मल सी सिंपल सी एक ऐसे है कि अगर हमारा बच्चा जो है वो नाफरमानी करता ही जाता है, पहले हम उसे प्यार से समझाते हैं, फिर हम उसे थोड़ी सख्ती से समझाते हैं। अगर सख्ती से भी हमारा बच्चा हमारी बात सुनने की कोशिश नहीं करता तो आखिर में हमारे पाकिस्तानी इंडियन कल्चर में होता क्या है, आखिर में माँ या बाप जो है अपने बच्चे पर हाथ उठा देते हैं, उसे थप्पड़ लगा देते हैं कि अगर डांट को नहीं सुन रहा तो अब थप्पड़ ही खाए। इसी से शायद हमारी बात को समझ जाए या मान लाए। लेकिन कुछ बच्चों को जो है वो नाफरमानी की इतनी ज्यादा आदत हो जाती है कि उनको थप्पड़ों के साथ भी अगर माँ बाप समझाएं तो वो नहीं मानते और गुस्से से कहें तो भी नहीं मानते। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको उम्र भर अपने माँ बाप से जो है वो मार खानी ही नहीं पड़ती, बल्कि वो वैसे ही अपने माँ बाप के फरमाबरदार लोग होते हैं। तो बात यह है कि माँ बाप अगर अपने बच्चों पर हाथ उठाकर उनको तरबियत करते हैं तो वो अपनी औलाद पर जुल्म नहीं करते, उन पर तशद्दुद नहीं करते। बात सिर्फ इतनी है कि माँ बाप अगर अपनी औलाद पर हाथ उठाते हैं तो वो तरबियत के लिए उठाते हैं। और हमारी बाइबल मुकद्दस में माँ बाप को सिर्फ तरबियत के लिए अपने बच्चे पर हाथ उठाने की जो है वो इजाजत दी गई है कि अगर हम अपने बच्चे को छड़ी से मारकर भी उसकी तरबियत करेंगे तो वो जान से नहीं मर जाएगा। अलबत्ता खुदा का कलाम ये नहीं कहता कि हर रोज सुबह से शाम तक अपने बच्चे को हर बात पर मारते ही पीटते रहो। जब ऐसा हो तो वो जुल्म के जमरे में आ जाता है। अदरवाइज अगर हम तरबियत के लिए अपने बच्चे पर हाथ उठाते हैं तो हम कोई गुनाह नहीं करते और ना अपने बच्चे पर जुल्म करते हैं। खुदा की भी बात ऐसी ही है। खुदा ने नस्ल इंसानी को बनाया। इस दुनिया में हम जितनी कौमें देखते हैं, जितने मज़ाहिब के लोग देखते हैं, हर इंसान जो है वो खुदावंद ही के बनाने से बना है। कोई भी इंसान जो है वो अपने ओन से वजूद में नहीं आया। जैसे कि साइंस हम देखते हैं कहती है कि इंसान तो खुद से वजूद में आ गया, या पहाड़ टीले खुद से वजूद में आ गए। कोई कहता है कि बंदर को मार मार के इंसान बना दिया गया। तो मुख्तलिफ किस्म की तालीमात हमें जो है वो दुनिया देती है, लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि इंसान कोई भी अपने आप नहीं आया, बल्कि इस दुनिया में हर आने वाला इंसान जो है वो खुदा की मर्जी से इस दुनिया में आता है। तो हर इंसान के ऊपर जो इख्तियार है वो खुदा का इख्तियार है। खुदा जिसे चाहता है बरकत देता है, और जब कोई खुदा की नाफरमानी पर नाफरमानी किए जाता है तो फिर खुदा उसे सजा देने का भी इख्तियार रखता है। जैसे हम अपने बच्चों को सजा देने का इख्तियार रखते हैं, वैसे ही खुदा जिसने इंसान को जो है बनाया है वो इंसान को भी सजा देने का इख्तियार रखता है। इसीलिए खुदा जब किसी कौम से लड़े, खुदा जब किसी इंसान से लड़े, तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि खुदा ने इंसान पर जुल्म किया, बल्कि खुदा इंसान को उसके किए की सजा देता है, ना कि उस पर जुल्म करता है। तो अब बनी इसराइल लोगों के सामने जो कौमें थी जो कि मुल्के कनान में आबाद थी और उनको मुल्के कनान से निकल जाना था, क्योंकि खुदा का हुक्म था, उनकी हलाकत के लिए खुदा ने हुक्म जारी किया था। तो अब उनको जो मारपीट करनी थी, उनको जो नुकसान पहुंचाना था, उनको जो शिकस्त देनी थी, ये बनी इसराइलियों का अपना जाती फैसला नहीं था, बल्कि खुदा ने उनको हुक्म दिया था। ये कोई ऐसा नहीं था आज जैसे हम बड़े मज़ाहिब के जोशीले लोगों को देखते हैं कि बात होती नहीं और झूठा इल्जाम लगाकर जो है घरों को भी जला दिया जाता है, चर्चेस को भी जला दिया जाता है, इंसान के मुंह पर थूक भी दिया जाता है, कभी इंसान ही को जिंदा जला दिया जाता है। ऐसे काम खुदा ने अपने लोगों को हुक्म नहीं दिए थे। ये स्पेसिफिक कौमें थी जिनका खुदा ने जिक्र किया था, जिनको मुल्के कनान से
निकाल कर खुदा ने मुल्क कनान को जो है वो बनी इसराइलियों को देना था, ताकि वो उनकी दायमी मलकियत हो जाए। और फिर ये कौमें जो है उस मुल्क में रहकर गुनाह किया करती थी। इनकी जिनाकारियां, इनकी हरामकारियां, इनकी बदकारियां जो है वो बहुत ज्यादा अरूज पर चढ़ चुकी थी, और ये तौबा की तरफ आने वाले नहीं थे। ये बुत परस्त लोग थे जो कि बुत परस्ती किया करते थे और बुतों के सामने गलत किस्म के गुनाह किए करते थे। और इसीलिए खुदा ने इनके गुनाहों की, इनकी हरामकारी की, इनकी बदकारियों की, इनके जिनाकारियों की, इनकी बुतपरस्ती की सजा देने के लिए खुदा ने बनी इसराइलियों को हुक्म दिया, और सख्ती से हुक्म दिया कि अब ये कौम जिनका गुनाह बहुत अरूज पर जा चुका है, अब इन पर रहम नहीं करना, अब इनके साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं बांधना, कोई वादे भी नहीं करने, अपनी बेटियां भी नहीं देनी, इनसे इनके बेटे भी नहीं लेने, कोई भी ताल्लुक नहीं बनाना। बल्कि खुदा कहते हैं कि जिसके लिए मैंने हलाकत का ऐलान कर दिया है, जरूर है कि वो हलाक ही हो। और जिसकी हलाकत का खुदा ने ऐलान कर दिया, खुदा उसके बीच में जो है वो इंसान को भी आने का हुक्म नहीं देता कि कोई इंसान मेरे फैसले में आकर बोले और मेरे अगेंस्ट खड़ा हो जाए। बल्कि खुदा ने कहा, अगर तो मेरे हुक्मों को मानोगे फिर बरकतें पाओगे, लेकिन अगर मेरे हुक्मों को रिफ्यूज कर दोगे, अगर उस कौम के लोगों के साथ जो है वो अपना अहद बांध लोगे, अपने ताल्लुकात बना लोगे, दोस्तियां कर लोगे, तो फिर तुम भी जो हो सजा ही पाओगे, तुम पर भी मेरा गजब भी भड़केगा, बरकत तुम्हें हरगिज जो है वो नहीं मिलेगी। आज कई लोग जो है हमारे अजीज इस दुनिया से चले जाते हैं और फिर खादमों को कहते हैं कि पादरी साहब दुआ करो उन्हें खुदा जन्नत से जगह दे दे। याद रखे, जिसकी मौत का ऐलान खुदा की तरफ से हो चुका है, जिसका जहन्नुम में जाने का ऐलान खुदा की तरफ से हो चुका है, खुदा मुझे और आपको इख्तियार ही नहीं देता कि हम उसके लिए जाके जन्नत की दुआएं कर सके। क्योंकि अगर इंसान सारी जिंदगी बदकारियां करके हलाक हो जाए, मर जाए, और फिर हम उसके लिए खुदा से कहें कि खुदावन तू इस बदकार को जन्नत में जगह दे दे, तो याद रखे जन्नत जो है कोई बदकारों का अड्डा नहीं है, बदकारों के लिए कोई शादी की महफिल नहीं है जन्नत। जैसे लोग कहते हैं कि वहां तो मर्द को पता नहीं कितनी औरतें दे दी जाएंगी और बड़ी इंटरटेनमेंट होगी। जन्नत जो है वो खुदा की हजूरी है, खुदा का जलाल है, वहां जहां पर खुदा की कलीसिया होगी, खुदा की इबादत करेगी, खुदा की सिताइश करेगी, और जन्नत में सिर्फ खुदा की हजूरी और खुदा का जलाल है। और ये नॉलेज जो गलत किस्म की तालीम फैला दी गई है कि जन्नत में बहुत सारी बीवियां दी जाएंगी, याद रखे खुदावन यस्सु ने कहा कि जन्नत में तो हम जो है अपने इस मट्टी के जिस्म के साथ जाएंगे ही नहीं, जन्नत में तो इंसान वैसे ही फरिश्तों की मानिद होंगे। तो फरिश्तों की मानिद अगर इंसान हो जाएगा तो इंसान को किसी बीवी की जरूरत ही नहीं रहेगी, और ना किसी बीवी को किसी शोहर की जरूरत रहेगी। ये खुदा का कलाम और खुदावन के कलाम की खूबसूरत बातें हैं, जिनको जो सुनता इनसे जिंदगी हासिल करता है, जो मानता है वो जिंदगी हासिल करता है। लेकिन जो कोई इनको ठुकरा देता है, इन पर अमल नहीं करता, अपनी जिंदगी में इनको जगह नहीं देता, वो खुद ही अपने आप को हलाकत में लेकर चला जाता है। और फिर उसकी मौत के बाद जितने मर्जी लोग दुआएं करें कि इसको जन्नत में जगह मिल दे, उसे जन्नत में जगह हरगिज नहीं मिलेगी। जिसके लिए जन्नत का दरवाजा खुदावन बंद करके उसके लिए जहन्नम जाने का ऐलान कर दे। सो जीते जी हर इंसान को फैसला करना है। इसीलिए खुदा ने बनी इसराइलियों के लिए भी जो है वो अहकामात दिए थे, तो दोनों कंडीशन सामने रखी थी, दोनों रास्ते सामने रखे थे। और जब यीशु मसीह ने कफारा अदा कर दिया, तो मेरे और आपके हमारे सामने भी खुदावन ने दोनों कंडीशंस रखी हैं, दोनों रास्ते दिखा दिए हैं। जो ईमान लाएगा वो तो नजात पाएगा, लेकिन जो ईमान नहीं लाएगा वो मुजरिम ठहराया जाएगा, और जो मुजरिम ठहरा दिया जाएगा हकीकी तौर पर वो सजा ही पाएगा। फिर भले उसकी माँ क्यों ना रो रो के दुआएं करे कि खुदा इसको जन्नत में जगह दे दे। कई समझते हैं कि माँ के पांव तले जन्नत है और माँ दुआएं करेगी तो इंसान को जन्नत मिल
जाएगा। याद रखे, जो माँ खुद जन्नत में नहीं जाएगी उसकी दवाएं आपको भी जन्नत में नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जिस माँ ने खुद सारी जिंदगी गुनाह में गुजार दी वो कभी भी जन्नत में नहीं जा सकती, और अगर वो खुद जन्नत में नहीं जा सकती तो उसकी दुआएं आपको भी जन्नत में नहीं लेकर जाएगी। सो खुदा ने अपने खादमों को इख्तियार दिया है कि जीते जी हमें जाकर अंजील की मुनादी करनी है, हमें कौमों को शागिर्द बनाना है, लोगों को हमने गुनाह की पहचान करानी है, हमें लोगों को बताना है, हमें खुद को बताना और समझाना है कि कौन सा काम खुदा की नजर में ठीक और कौन सा काम खुदा की नजर में गलत है। अगर तो खुदा की नजर में जो काम ठीक है वो करेंगे तो फिर बरकत भी पाएंगे, नजात भी पाएंगे, और अगर वो काम करेंगे जो खुदा की नजर में बुरे हैं फिर ना तो बरकत पाएंगे, ना नजात पाएंगे और ना बचाए जा सकेंगे। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे और हम सबको तौफीक दे कि हम वैसे ही एहतियात करके खुदा के हुक्मों पर अमल कर सकें जैसा खुदावंद हमारा खुदा मुझसे और आपसे हम सबसे चाहता है। सो अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे कदमों में आकर तेरे कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आते हैं हर रोज तेरे पाक कलाम को सीखने के लिए, सुनने के लिए, या जो लोग बाद में इस वीडियो को सुनकर तेरे कलाम को सीखते हैं, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, इनके घरानों को छू बरकत दे, अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में बरकत को कसरत से उंडेल दे। जो लोग तेरे कलाम को सीख कर खुदावंद द वे ऑफ हेवन को स्टार्स देते हैं ताकि तेरी खिदमत का काम और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके, उनके दिए को भी तू अपनी हुजूरी में बाखूर की मानद कबूल कर और इसके इवज उनको बड़ी बरकत दे। ऐ बाप आसमानी, मैं उन तमाम लोगों की दरखास्तों को तेरे सामने रखती हूँ जिन लोगों ने अपनी दरखास्तें इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में की हैं या फिर खुदावंद व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं। तो अपने लोगों की तमाम दरखास्तों को कबूल कर उनके मुस्बत जवाब दे और तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर दे, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सके। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा सबको कसरत से इस्तेमाल कर। बने इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद हम सबके साथ हो, आप सबके भी साथ हो, बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहे ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हम ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 9 बजे। सो आप जरूर खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते चले जाएं और खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।